کراچی کے مسائل پر بات کرنا جرم بن گیا۔ سندھ حکومت ناکام حکومت ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سانحہ گل پلازہ پر وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے لگائے گئے عہدیدار اپنی کوتاہی قبول کر چکے ہیں۔ ہم نے ہڑتال کی کال نہیں دی، صرف ظلم کو ظلم کہا ہے۔ کی یہ جو ناکام حکومت ہے پیپلز پارٹی کی 17 سالوں سے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اس کے اتنے 70% ریونیو کما کر دینے والے شہر کا کنٹرول وہ اپنے پاس رکھ سکیں۔ یہ حکومت یہ ناکام ہو گئی۔ ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وفاق سیلف فور آرٹیکل 148 149 کے ذریعے کراچی کو وفاق کا حصہ فائنینشیل کیپٹل کو ڈکلیئر کرے، کیونکہ اب اس حکومت میں یہ اہلیت نہیں ہے سندھ حکومت میں، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کراچی جیسے پوٹینشیل شہر کی حکمرانی اپنے پاس رکھ سکے۔ وزیر اعلیٰ اور تمام لوگ ان کے عہدیداران خود ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہاں ان کی کوتاہیاں ہیں۔ ہم نے کوئی ٹائر نہیں جلایا، ہم نے کوئی ہڑتال کی کال نہیں دی، ہم نے تو صرف اور صرف ظلم کو ظلم کہا ہے۔ اس کے اوپر اگر جو وہ یہ ان کا رویہ ہے کہ کوئی بات بھی نہ کرے، ایم کیو ایم کے اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ملنے والے اختیارات اور وسائل، اس کا عوام کو ٹرکل ڈاؤن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم کراچی والوں کو گمراہ کر رہی ہے، مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی۔ ایک سیاستدان کو 10 اہلکاروں کی سیکیورٹی دے رکھی ہے۔ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کی شکایت کا جواب دے دیا، ساتھ ہی شکوہ کیا کہ مدد کے بجائے اختلافات الزامات کی سیاست کو ہوا دی۔ منفی پروپیگنڈا بند کیا جائے۔ کراچی کو قبرستان بنانے والی جماعت ایم کیو ایم ہے۔ نہیں لی گئی، کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی، اور میں بھی اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے پتا ہے وفاقی وزراء وہاں پہ ایک سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے۔ تو یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ جو ان کی سیاست مردہ ہو چکی ہے، جو ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، دے آر دا ریجیکٹڈ پیپل۔ تو وہ ریجیکٹڈ جماعت جو ہے وہ اب وہ ان کو اور تو کوئی سیاست کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو بولا اس واقعے سے کس طریقے سے انکیش کیا جائے۔ وہاں پہ معصوم لوگ جل رہے تھے، ان کو اپنی سیاست کی پڑ رہی تھی۔ خالی ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرنے سے اور ٹی وی پہ جو ہے من گھڑت پروپیگنڈا کرنے سے اس طریقے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ آپ کو اس وقت ان لوائقین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا تھا۔ آپریشن تو مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن جل کر راکھ ہوئے 46 افراد کی تلاش معمہ بن چکی ہے۔ سرچ آپریشن کے بعد گل پلازہ کی عمارت سیل کر دی گئی ہے۔ معاملے پر سیاست اوپن ہو گئی ہے۔ کراچی کی سیاسی بساط پر قائدین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ گل پلازہ کے بھڑکتے شعلوں پر کراچی کی سیاست سلگ گئی۔ مفاہمتی سیاست کی لو بجھ گئی۔ سیاسی بساط پر نئی جنگ چھڑ گئی۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے۔ 18 سال صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاقی حکومت بھی ایک زمانے میں آپ کی تھی، آج بھی آپ کا ضرور رسول ہے وفاق میں۔ آپ اس طرح کے سانحات کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی۔ یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں، جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں۔ 2 دہائیوں کی بے حسی اور بدترین اور کرپٹ حکمرانی کے نتیجے میں گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو مریوس جمع قرار دیں گے کیا؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ جیالے بھی خاموش نہ رہ پائے۔ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں ہیں۔ سیاست جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوتی ہے، ایسے موقع پہ پیڈ کیمپینیں نہیں چلائی جاتی، ایسے موقع پہ بیٹھ کر لوگوں کو اشتعال نہیں دلایا جاتا۔ کوئی شخص کوئی نعرے بازی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی نیت یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر نہ آئیں۔ جماعت اسلامی نے بہتی گنگا میں خوب غوطے لگائے۔ سی ایم صاحب کا کوئی جواز نہیں ہے اب اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر۔ اس پوری جو ہے نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ بلڈنگ بنی، جس میں سے 85,000 بلڈنگیں غیر قانونی بنی ہیں۔ سیاسی قائدین کی حرکتوں پر متاثرین گل پلازہ نے آنسو بہائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کراچی والے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟
गुल प्लाजा की इमारत को गिराया जाए या मुतासरा इमारत को ही दोबारा तामीर किया जाए, ज़िला इंतज़ामिया ने हतमी फैसला SBCA के हवाले कर दिया। तहकीकाती टीमें आज भी मुतासरा इमारत का मुआयना करेंगी। साइने की दर्ज कॉपी के मुताबिक इमारत के खारजी रास्ते बंद थे। गुल प्लाजा असर नौ तामीर होगा या खस्ता हाल मखदूश इमारतों को ही मजबूत करके बनाया जाएगा। ज़िला इंतजामिया ने फैसले का इख्तियार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सौंप दिया। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम्स आज भी मुआयना कर रही हैं। दूसरी जानिब इमारत आतिशज़दगी से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई है। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंकशाफ हुआ कि इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सबसे पहले आग दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कर फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप पर भड़की। चीफ ऑपरेशन मोहम्मद अशरफ के मुताबिक ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। ज्यादातर लाशों के आसा मिले हैं। बॉडीज को रिकवर किया तो उसमें ज्यादातर हालत ऐसी थी कि शनाख्त होने के नाकाबिले शनाख्त थी और कुछ के हमें पार्ट्स भी मिले अक्सरियत में, तो वो रिकवर किया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बताया कि मजमूई तौर पर 273 डंपर्स में मलबा उठाया गया। इमारत को कॉर्डन ऑफ करके ग्रीन जाली लगा दी गई है। जो हमारे ऑपरेशन चल रहा है, आप देखा आपने ये डेब्रिज से हमने साफ की है। ये तकरीबन हमने 273 डंपर हमने उठा लिए अभी तक। अब इसको कॉर्डन आउट कर रहे हैं हम लोग। इमारत के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद से इलाके में 10 रोज से जायद हो चुका है। सुई गैस की फराहमी अब भी मअतल है। इलाका मकीन गैस सिलेंडर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। गैस की बंदिश से 10,000 घर मुतासर हो रहे हैं। गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशज़दगी से अहले इलाका भी मुतासर। इलाके में 10 रोज से गैस की फरहमी मुअत्तल। 17 जनवरी को लगने वाली आग के बायस इलाके में गैस मुनक़ता कर दी गई थी, जो अब तक बहाल न की जा सकी। इलाका मकीन शदीद परेशानी और मुश्किलात का शिकार। घरेलू सार्फिन खाना पकाने और दीगर जरूरियात के लिए महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पिछले इतवार 12 बजे दिन से बंद है और अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम ये कि गैस परचेज़ करके सिलेंडर पे, जो कि डेंजरस भी है, वहाँ गुजारा कर रहे हैं। बस अल्लाह मियाँ रहम करे हम लोग पर। अहले इलाका के मुताबिक गैस की बंदिश से 10,000 घर मुतासर हो रहे हैं। सुई गैस कंपनी में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कंपनी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि DC ऑफिस से इजाज़त मिलने तक गैस की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकती। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए गैस की फरहमी फौरी तौर पर बहाल की जाए। कराची को आर्मी चीफ के हवाले किया जाए। कराची की ताजिर बरादरी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। बोल के मॉर्निंग शो में मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने एक बार फिर सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से बड़ी अपील भी की। इस मसले का हल नहीं दे रहे तो फिर ताजिर बिरादरी किसके पास जा रही है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। अच्छा। इसके अलावा हम हल नहीं है। देखें, इसको मैं लॉजिक के साथ बता सकता हूँ कि सैलाब हो, यानी कोई आफत हो, जलजला हो, या आप बारिशें हो, या आप कहेंगे जंग के हालात हो गए, तो 4 दिन में फील्ड मार्शल ने जंग जीती है। और ये अगर आप सेहरा नहीं देना चाहती तो आवाम में से तो फौज है। फौज कहाँ से आती है? फौज अवाम में से, हर घर से एक सिपाही है। ऐसा नहीं है। हम अवाम और फौज को क्यों अलग कर रहे हैं? हमें आपस में मिलकर काम करना है। इस वाक़े के बाद से आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी अब निजी तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। दरसगाहों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स और साथ साथ फायर बुझाने वाले आलात की तनसीब लाजमी करार दे दी गई है। हंगामी रास्ते और स्टेयर्स खुली रखने के साथ साथ फायर एक्यूवेशन प्लान नुमाया मकामात पर आवेज़ा करने का हुक्म भी दिया गया है। इसके अलावा हिदायत पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी वाज़ेह किया गया। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। मुआवजे की मंजूरी, शहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की अज़सर नौ तश्कील की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, मुआवजे की मंजूरी, शहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। काबीना को बताया गया कि गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। काबीना ने मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी दी।
वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दी गई। महकमा समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तोसी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध हुकूमत के 3 मराकज़ चला रही है। सिंध काबीना ने BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $620 मिलियन करने और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। नवाब शाह मेहरान हाईवे के करीब खंबड़ लकमेर मोड़ के करीब बारातियों से भरी बस उलट गई। हादसे के बाद 20 से जायद बाराती जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। जी सीनियर मिनिस्टर साहब। सर, लॉ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बताया कि आज भी सर आप हाउस इन ऑर्डर करवा दें। सर पहले आप जब अपोजिशन लीडर साहब बात करें तो हमारे मेंबर में से किसी ने भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। सर, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसकी तफसीलात ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ने बताई और हमने बताया कि कैबिनेट में क्या क्या हुआ। एक एक चीज पे डिटेल में डिस्कशन हुई। जो मेजर्स हुकूमत ने लिए हैं वो भी बताए गए और जिस तरीके से उन लवाहिकीन के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो भी बताए। कराची के तमाम ताजिरों से पहले दिन से हुकूमत सिंध उनके साथ मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके राइट पे और लेफ्ट पे जितने ताजरान बैठे थे उन्होंने अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हुकूमत के किए गए तमाम इक़दामात को सराहते हैं और हमें एतमाद है कि हुकूमत हमारे साथ जो है वो इंसाफ करेगी। जब वहाँ पे ताजरान जो कि ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम लोग, जब सब के सब लोग एक पेज पर हैं तो उस पर फिर उसके बाद आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई सर बहुत वाज़ेह कह दिया। कैबिनेट मीन्स हुकूमत ने 5 रुकनी एक टीम बनाई है जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, सईद गनी साहब भी शामिल हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी शामिल हैं, सबके सब शामिल हैं। और वो रिपोर्ट जो कि अब किसी भी लम्हे आएगी उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा और उसमें तमाम इंसाफ के अगर तकाजे पूरे हुए होंगे तो फिर उसको सामने लेकर आएंगे। और अगर उसमें हम समझेंगे कि अगर उसमें तकाजे पूरे नहीं है, अगर वो कमेटी समझेगी जिसको मैंडेट कैबिनेट ने दिया हुआ है तो जुडिशियल कमीशन भी बनाएंगे। सर मैं एक और बात कह रहा हूं इस वक्त इस चीज का फायदा किसी को नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हुकूमत ने काम किस दिन करना है, किस लम्हे करना है, वो हुकूमत किसी की डिक्टेटेशन पे भी नहीं करेगी। तीसरी बात सर, इसके लिए हमने लाहौर से एक फॉरेंसिक टीम मंगवाई हुकूमत ने, लाहौर से, जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये संजीदगी का आपने लम्हा देख लिया, ऑर्डर इन द हाउस। आपने संजीदगी की बात देख ली कि ये तो कराची के लोगों का, उन मासूम लोग जिनके 80 जनाजे गए, उनका ये एहसास है। मैं बात क्या कर रहा हूं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। तो सर अब ये गुफ्तगू का अंदाज है जी। तो सर लाहौर से फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पे वो भी इसकी इंक्वायरी कर रही है। इसके हर लम्हे हर चीज को हम हर पहलू को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है सर, किसी से भूला हुआ नहीं जो इन्होंने कराची का हशर किया हुआ है। जिस तरीके से ये मासूम लोगों की बातें करते हैं, जिस तरीके से इस शहर में खून की होलियां इन्होंने खेली हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से लोगों को चुन चुन के यहाँ मारा गया वो किसी को छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। हुकूमत हर सूरत में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी है, हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है और जब तक ताजरों को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। हुकूमत हर हाल में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी रहेगी। बाकी यहाँ पे सियासत चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। जी एक मिनट जी, एक मेरी बात सुन लें। जी मैं
हाँ, लेकिन आप खामोश है तो मैं आपसे बात, मैं करता हूँ बात ना, आप मेरी सुने तो सही, आप मेरी सुनेंगे तो फिर है ना। आप तो एक मिनट भाई, एक मिनट। जी आप बैठे, मैं आपसे बात करता हूँ। जी बैठे, एक मिनट, तशरीफ रखें आप। अरे भाई तशरीफ रखें, इफ्तिखार साहब तशरीफ रखें। जी मैं फैसला जी बता रहा हूँ फैसला। आप बैठे तो सही, मैं तशरीफ रख। जी फैसला बता रहा हूँ, फैसला बता रहा हूँ। जी बैठे। आप मुतवज्जा हो तो मैं बताता हूँ। आप थोड़ा सा देखिए, बात ये है, आप बैठे मैं बताता हूँ। जी आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ने दूंगा, लेकिन मेरी सुन लें आपको मौका देता हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ मैं पढ़ने का। बैठे आप बैठे, मैं पढ़ने का मौका देता हूँ। आप बैठे जरा एक मिनट। देखिए बात ये है, नहीं इस तरह नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, कल भी मैं आपको बुलाता रहा। बैठे देखिए बात ये है अली साहब, सुन लें, सुने। देखिए कल भी आपसे हम रिक्वेस्ट करते रहे कि आप रेजोल्यूशन लाएं। हाँ चलें, आपने 24 घंटे लिए एक कंसेंसस बनाने में, ही अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने, सीनियर मिनिस्टर साहब ने असेंबली फ्लोर पे इस चीज़ को अश्योर किया है कि जो आपका मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए, इस इंक्वायरी के बाद अगर आप मुतमईन हुए और तो उसमें उन्होंने बिल्कुल उसको कमिट किया है फ्लोर पे, तो मेरा ख्याल है आपका ये जो अभी इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। चलें जी, ये आपकी बात सुन ली, उन्होंने जवाब दे दिया। अभी क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1475 साजिद अली सुमरो साहब नहीं मौजूद। हुकूमत से रुजू करना था कि 100 MJD जो हमारी एलोकेशन है उसमें इजाफा किया जाए, कि ये 100 MJD हमें मिला था 1980 के ज़माने में मिला था। शहर बहुत बड़ा हो चुका है, पानी डैम में मौजूद है, उस डैम से 67 MJD बलूचिस्तान को मिलता है, 100 MJD कराची को मिलता है। तो चूंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो हम वापडा से रुजू किया और वापडा ने कहा कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजाज़त के बाद ये पानी दिया जा सकता है, तो हमने वो उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब पानी आना शुरू हुआ तो चैलेंज ये बना कि रिजर्वॉयर में कैपेसिटी का फुकदान है। क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल में कभी किसी ने रिजर्वॉयर की डीसिल्टिंग करने का सोचा है, और 40 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत चैंपियन अल्लामा नेक शरीफ लोग पिछले 40 सालों में आए हैं। मैं तो अभी आया हूँ, मैं आज गया वहाँ पे, आप दोस्तों को लेकर गया, आप देखा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। तो हमने ये फैसला किया कि हम रिजर्वॉयर की डीसिल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। डीसिल्टिंग का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। 7.5 MJD के 2 रिजर्वॉयर हैं हमारे पास। हम इसको बाइफरकेट किया है, पहले 7.5 पे काम करें और फिर 7.5 पर करेंगे। तीसरे काम चल रहे हैं, और मैंने ताकीद ये की है कि रमज़ान शरीफ की आमद से पहले हम ये डीसिल्टिंग का काम मुकम्मल करें, ताकि पूरा 15 MJD हमारे पास अवेलेबल हो, जिससे शहर के वेस्ट के इलाके में, किमाड़ी के इलाके में हम पहुँचाने में बेहतरी आ सके। इसका फ़ायदा मंगो पीर की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा मोमनाबाद की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा औरंगी की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा मोलडो मीरभर की आवाम को होगा, बल्दिया की आवाम को होगा, मौरीपुर की आवाम को होगा, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चंद इलाके हैं जहाँ पे इस इंटरवेंशन का फ़ायदा होगा। काम हमने स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।